हरियाणा में बड़े लंबे समय से ये मांग थी कि यहाँ का गुरुद्वारा प्रबंधन खुद हरियाणा के सिख समुदाय का हो। इसको लेकर के जत्थेदार जगदीश सिंह झिंडा जी ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, सरकारों के ऊपर दबाव बनाया। आखिर में सरकार को उस दबाव में झुकना पड़ा और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की नींव रखी गई। हाल ही में इसके चुनाव हुए और एक बड़ी जीत हासिल करते हुए जत्थेदार जगदीश सिंह झिंडा जी को प्रधान नियुक्त किया गया। हमारे साथ जत्थेदार खुद मौजूद हैं। इनसे पूरी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के बारे में जानेंगे। क्या इसका कामकाज होता है, किस तरह का कामकाज होता है, ये सिख समुदाय में की जो सबसे बड़ी संस्था होने के कारण जो है इसकी क्या भूमिका होती है समाज में, उन सभी मुद्दों को लेकर के हम उनसे बात करेंगे। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है जत्थेदार जगदीश सिंह झिंडा जी। क्या कहेंगे, आपने बड़े लंबे समय से ये लड़ाई लड़ी और ये मांग आपकी रही है। हमें याद है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार होती थी तो एक बड़ा आंदोलन आपने इसको लेकर के छेड़ा था और ये सौभाग्य ही है कि आप पहली बार इसके प्रधान भी चुने गए हैं। तो क्यों ज़रूरत पड़ी हरियाणा की अपनी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सारी जनता ते संगत नूं ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 1925 ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, 1925 ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 1925 ਬਣਿਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ। ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਹੰਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 1947 ਵਿੱਚ। ਕੇਵਲ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਦੋ ਸਟੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੋ ਸੂਬੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ 1966 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਨਰਗਠ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ,
ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਸੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਸਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਚਾਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 1966 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਦੋ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏ। ਇਹ 1966 ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਕਿ 1996 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਅਨਅਫੀਸ਼ਲੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ 1999 ਸ਼ੁਰੂ ਚੁੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ 8 ਹਲਕੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਘੂਜੀਤ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਈ ਚਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਐਕਟ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਥਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੜਾਵਾ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੰਮ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ 1999 ਦੇ 'ਚ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 1966 ਦੇ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਣੇ ਕਰਤੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਝਿੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਅਕਲੋਂ ਖਾਲੀ। ਬਈ 1966 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਨ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲਾਈਨ ਕਟਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਬਈ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਤੋੜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1966 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋੜੀ, ਤੋੜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਫਿਰ ਉੱਠਦੀ ਗਈ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਵਾਂ, ਧਰਨੇ, ਜੇਲਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੱਕਦੇ ਰਹੇ, GT ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਬਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਚੱਲੀ, 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਝੂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਥੇ 3 ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ 2014 ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟ ਹੈ, 1966 ਦੇ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ रहेगी, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਲ वर्ल्ड ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ चैलेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट और हरियाणा सरकार ने बाद में बाकायदे इसमें बड़ी भूमिका निभाई कि बाकायदे चुनाव कराया और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी कि आप बतौर पहले अध्यक्ष कहा जा सकता है कि आप चुने गए। अब ये बड़ी बात आती है कि ये हम समझना चाहेंगे कि सिख संगत में इस कमेटी की कितनी ज़्यादा महत्ता है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। आप किस तरीके से ये समझाएंगे कि मतलब ये इतनी ज़रूरत क्यों है इसकी? मैं समझदा हाँ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। 8 ਸਾਲ ਤੱਕ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਨੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਕ ਦਿਲਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਨੀय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਨੈਬ ਸੈਣੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 3-4 ਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, 300-400 ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਡਿਓਕ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਇਆ। 19 ਜਨਵਰੀ ਸਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੰਥਕ ਦਲ ਝੀਂਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 49 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। तो अब आगे क्या काम है, मतलब आपके अगुवाई में अब आपकी बड़ी चुनौती क्या है, क्या क्या काम है जो आप करना चाहेंगे? चुनौती हमारे आगे नहीं थी, हमने खुद ही चुनौतियां पैदा की। इलेक्शन जीतने के लिए असलियत बात तो ये है, हमने संगत में गए भी हमें बना दो, मेंबर जिता दो, प्रधान बना दो, हम यहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, एजुकेशन के बड़े बड़े सेंटर खोलेंगे, कॉलेज बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, अपनी शिक्षा को ऊपर स्तर उठाने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे, PGI खोलेंगे। ऐसे हमने वायदे किए। उसके साथ साथ जहाँ हमने एजुकेशन और हेल्थ का वायदा किया, वहाँ पर हमने ये भी वायदा कर दिया कि हम सामाजिक कामों में भी आपके बढ़ चढ़ हरियाणा कमेटी आगे होकर काम करेगी, जो समाज में सहूलतें दी जाएगी। तीसरा, हम धर्म प्रचार
जो हमारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सही ढंग से नहीं कर सकी, उनको भी ज़मीनी लेवल से लेकर हम हरियाणा के जो बटे प्रतीत हो रहे हैं, चाहे वो नशे में डूब गए हैं, चाहे वो केस कटवा रहे हैं, नशा को बंद करना, उनको सही लाइन पे लाकर सिक्खी रूप में धारण करना, धर्म प्रचार के द्वारा हम उनको भी करेंगे। हमने ये चुनौतियाँ खुद अपने मुंह से पैदा की हैं। अब हमारा फर्ज दायित्व क्या है कि हम उन चुनौतियों को कैसे चुनौतियों को विकल्प के रूप में, प्रैक्टिकली रूप में कैसे दे पाएंगे संगत में, ये हमारे आगे सबसे बड़ी चुनौती है। हमने वादा कर दिया यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया चाहिए, मेडिकल पीजीआई बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया चाहिए, धर्म प्रचार के लिए हमें फंड चाहिए, सामाजिक कार्यों के लिए हमें सैकड़ों करोड़ के फंड चाहिए। ये कुल मिला के हज़ारों करोड़ के फंड बनते हैं टोटल सभी चीज़ें, तब हम सहूलतें हरियाणा में हरियाणा की संगत को व जनता को दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारा बजट ही केवल 100 करोड़ रुपया का है। अब वो इतना हज़ारों करोड़ का रुपया कहाँ से आए, और जो हमने वायदे किए हैं उनको हम निभा कैसे पाएँ, ये हमारे आगे हमारी खुद चुनौती अब हमें ही चुनौती दे रही है कि आपने लोगों से वादा किया, उस चुनौती को आप किस ढंग से करेंगे। हमने सबसे पहले मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज की बात रखी। भाई हरियाणा कमेटी बनते सार ही हम मेडिकल कॉलेज को 1 साल के अंदर अंदर चालू करा देंगे, और इसमें 99 साल का पटा जो है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास है। और अब जब वो हमारी जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, तो उन्होंने सेक्शन 54 में क्लियर किया, उसमें उन्होंने 7 आगे कैटेगरी रखी, ABCDEF 6 कैटेगरी रखी, और उन्होंने कहा कि जब भी हरियाणा कमेटी अब बन गई है, जो चल संपत्ति श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाम है हरियाणा में नाम है, चाहे वो कॉलेज हैं, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो लैंड की ज़मीन है, चाहे वो पटे की ज़मीन है, चाहे वो लीज की ज़मीन है, चाहे वो ट्रस्ट की ज़मीन है, वो सारे के सारा उसकी मालक हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में। और उसमें सबसे बड़ी जो आगे 56 एक्ट में उन्होंने लिखा, 56 धारा बिल्कुल स्पष्ट करता है कि यदि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा की ज़मीनों पर कब्जा नहीं छोड़ेगी, तो जो हरियाणा कमेटी बनेगी वो स्टेट सरकार का भी सहारा ले सकती कब्जा छुड़वाने के लिए, और सेंट्रल सरकार का भी कब्जा ले सकती है, क्योंकि स्टेट सरकार का जो मसला है वो तो केवल स्टेट का मसला है। जब 2 स्टेटों का मसला आ जाता है, इंटर स्टेट मसला आ जाता है, तो वो पार्लियामेंट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। इसलिए वो बहुत बड़ा हमारा ये इंटर स्टेट मसला पंजाब स्टेट और हरियाणा स्टेट का आपस में मसला उलझा हुआ है, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मेडिकल कॉलेज के लिए मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज के लिए उनके पास 99 साल का पटा है, मगर वो पटा तब खत्म हो जाता है, सेक्शन 54 उसको ख़त्म कर देता है उस पटे को, और आगे कब्जा दिलवाने के लिए स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार को लिख देता, अभी यदि नहीं छोड़ते तो वो ज़बरदस्ती भी छुड़वा सकते हैं। इसलिए हमने अपने प्रधान धामी जी से इस बात को सुलझाने के लिए कि हमारा आपस में डिस्प्यूट पैदा ना हो, आप एक वकील हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, आप जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उस फैसले के आधार पे मीरी पीरी मेडिकल कॉलेज के ऊपर हमारा हक बनता है, राइट बनता है, इसलिए वो हमें सौंप दो, हम उसको चालू करवा देंगे। इसलिए मैं 2 बार विजिट कर चुका हूँ। जो श्रोमणी कमेटी कहती है कि 2 साल में चालू कराएंगे, तो मैंने वहाँ जाकर देखा वो 6-9 महीने के अंदर अंदर चालू हो सकता है। जो बिल्डिंग उन्होंने 400 बेड की OPD बनानी है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, वो कहते हैं कि हम 6 महीने में, मैंने उनको कहा नहीं 6 महीने में, 3 महीने में करा के दो। जो वो हमें जनवरी तक तैयार करके देना चाहते हैं, हम उनको सितंबर तक का टाइम दे दिया। सितंबर के बाद ये मसला मेडिकल कॉलेज का जो मसला है, ये पार्लियामेंट पास करती है भी ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर चलाया जाए, और उस चलाने के लिए 400 बेड की OPD होनी ज़रूरी है। मेडिकल कॉलेज के 100 बच्चों की यहाँ एफिलेटेड मिली हुई है, उसके 100 बच्चों के लिए हॉस्टल और पढ़ाई के कमरे होने बड़े ज़रूरी हैं। ये बिल्डिंग दिखानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने बिल्डिंग वालों को, बिल्डरों को कह दिया है कि नवंबर तक ये हमें बिल्डिंग तैयार करके दे दो। नवंबर के बाद हम अपना केस जाके पार्लियामेंट में पुट कर देंगे, और आने वाली जुलाई में
जो 100 बच्चे डॉक्टर बनने हैं, 100 का एडमिशन हम जुलाई में चालू कर देंगे। ये हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं पिछले दिनों खट्टर साहब से मिला, मुख्यमंत्री साहब से मिला, और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि जैसे ही आपकी बिल्डिंग तैयार हो जाए तो आप सारा नक्शा बना के हमें प्रोवाइड करा दो, हम इसका पार्लियामेंट में मुद्दा उठा के तो आपको परमिशन दिलवा देंगे। हम आस करते हैं सरकार, सेंट्रल सरकार से और स्टेट सरकार से, उनके सहयोग से वो जो है। और उसने श्रोमणी कमेटी ने एक बहुत बड़ा हमारे साथ न्याय किया। उस पर खर्च तो होना है केवल 40 करोड़ दोनों बिल्डिंगों पर, और उन्होंने 50 करोड़ का लोन ले रखा है, वो भी हमें भुगतना पड़ेगा। वो अपने पैसे थोड़ा अपने घर से लगा रहे हैं। ज़मीन भी हमारी गुरुद्वारा मस्तगढ़ की, वो 99 साल का पट्टा ले रखा, और जो आज तक पैसा खर्च हुआ है वो जींद और दमतान साहब और हमारे गुरुद्वारों से खर्च हो रहा है। श्रोमणी कमेटी एक पैसा भी नहीं लगा रही। और अब जब वो काम अटक गया, करवाने की बात आई, 30 करोड़ 40 करोड़ खर्च तो होना था, 50 करोड़ का उन्होंने लोन ले रखा है, वो भी हम भुगतेंगे। इसलिए हम सारी स्थिति पर ध्यान रखे हुए हैं, और सारी स्थिति जल्दी से जल्दी हम अपने हरियाणा के बच्चों को मेडिकल की तरफ ले जाने के लिए, 100 बच्चा हमारा हर साल डॉक्टर बने, इसलिए हम टाइम नहीं ख़राब करना चाहते अपने बच्चों का। 1991 में टोड़ा साहब ने नींव रखी थी, 9 साल वो और 25 साल ये, 34 साल तो पहले हम तड़फते रहे इसके लिए। 2005 में हमारे शोर करने के बाद जब मैं SCPC के मेंबर 2004 में बने, तो 2005 पर हमने मीरीपीरी मेडिकल कॉलेज का काम शुरू कराया, और 100 करोड़ का बजट रखा। वो भी 100 करोड़ हमारा हरियाणा का ही लगना था, और मगर 2005 से लेकर आज 2025 हो गई, 20 साल उसको भी हो गए। जो 2 साल में तैयार होना था वो 25 साल में नहीं तैयार हो सका। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इलेक्टेड बॉडी आ चुकी है, और इलेक्टेड बॉडी संघर्ष से ये वादा करती है कि हर हाल में हम जुलाई में मेडिकल कॉलेज को शुरू कर देंगे। पहली तो ये करेंगे। और दूसरी चुनौती जो हमने आप खुद खड़ी की है कि हम यूनिवर्सिटियाँ देंगे, वो यूनिवर्सिटी हम ये भी साथ में बयान देते रहे हैं। कहते हैं ना कि मुँह बोलो तो पर पूरा करना बड़ा औखा है, मुँह बोल काट देना बड़ा सौखा है। बड़ी बड़ी चुनौती है। हमने खुद चुनौती अपने लिए पैदा की है। हमने कहा है कि हम वर्ल्ड लेवल पर हरियाणा कमेटी का नाम चमकाना चाहते हैं। नाम तो जब वर्ल्ड लेवल में चमकेगा जब वर्ल्ड लेवल के काम करेंगे। हमारी ये सोच है कि हम एक वर्ल्ड 6 यूनिवर्सिटी गुरु तेग बहादुर के नाम पर, जहाँ पर हमारे पास 526 एकड़ चंडीगढ़ हिसार हाईवे पर ज़मीन पड़ी है, 526 एकड़, उसमें हम 250 एकड़ में एक वर्ल्ड लेवल की एक अलग से यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे 250 एकड़ में। और उसके साथ लगती 100 एकड़ में हम महिला महाविश्वविद्यालय बनाएंगे, जो सारी दुनिया में नहीं है, केवल महिलाओं के लिए। वो हम यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे। उसके साथ 50 एकड़ में हम रिसर्च ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि ज़मींदारा का खिता है हरियाणा में, 80% लोग ज़मींदार करते हैं, इसलिए वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। 50 एकड़ ज़मीन हमने उसके लिए सिक्योर की है भी हमारे जो बच्चे पढ़ लिख के नौकरी ना मिल सके, वो खेती बागवानी और अच्छे काम कर सकें, खेती आधुनिक तरीके से कर सकें, वो 50 एकड़ भी हमने उसमें रखी है। ये 400 एकड़ में हम एक वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसके लिए मेरी 2 मीटिंगें, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यहाँ पास ही पड़ती है, प्राइवेट है, उसके चांसलर से मेरी मीटिंग हो चुकी है। मेरी दिल्ली वाइस चांसलर जो है दिल्ली, उनसे भी बात हो चुकी है मेरी। इस पर मैं काम करना शुरू कर दिया है, और मुझे अभी 1 महीना हुआ है, आज ही 1 महीना पूरा है। 1 महीने में हमने अनाउंसमेंट भी कर दी, उस पर वर्क भी करना शुरू कर दिया, और उसकी प्लानिंग भी शुरू कर दी, और उसकी ड्राफ्टिंग भी शुरू कर दी भी क्या कहाँ बनेगा, कहाँ कैंप्स होंगे, कहाँ वहाँ गुरुद्वारा। जैसे मैं मीरीपीरी मेडिकल कॉलेज गया, नक्शे में वहाँ पर गुरुद्वारा है, मगर आज तक गुरुद्वारे की नींव नहीं रखी गई। भाई हम वहाँ गुरुद्वारे की नींव भी वहाँ रखेंगे। और मेरी कार सेवा वाले बाबू से बात भी हो गई भाई यहाँ मेडिकल कॉलेज में ये गुरुद्वारा होने चाहिए, मीरीपीरी में यहाँ पर एक सराह भी होने चाहिए, जो साथ में मरीज में आदमी आते हैं उनको रहने के, उनके खाने के लिए एक लंगर हाल भी होना चाहिए। वहाँ गुरुद्वारा भी बनाया जाएगा, वहाँ पर लंगर हाल भी एक बनाया जाएगा मीरीपीरी मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ पर एक सराह भी बनाई जाएगी, ताकि जो मरीज तो अंदर दाखिल हो जाएगा, जो उसके पेरेंट्स हैं उनको भी किसी तरीके की तकलीफ़ ना हो। इस पर हमने वर्क शुरू कर दिया है, और यूनिवर्सिटियों पर भी हमने वर्क शुरू कर दिया है। 2 वाइस चांसलरों से मेरी मीटिंग हो चुकी है, और अभी मैं 6-7 जितनी हिंदुस्तान में वाइस चांसलर है उनके साथ मीटिंगें करके, इसके बाद बाहर भी हम विदेशों में भी जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड लेवल की एक अलग से यूनिवर्सिटी हमने स्थापित करनी है। जो भी जिस भी, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, या और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं विदेशों में, उनकी जो चीज़ हमें अच्छी लगेगी
और जो हिंदुस्तान की अच्छी लगेगी, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चाहे वो पंतनगर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है, चाहे वो और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जो चीज़ हमने जो पार्ट्स उनका अच्छा लगेगा वो चीज़ हम वहाँ लगाएंगे, ताकि सारे क्योंकि मल्टीपर्पज़ ऐसी यूनिवर्सिटी हम स्थापित करेंगे जो वर्ल्ड का एक नमूना हो सके, तभी हमारी कमेटी का नाम वर्ल्ड के अक्षरों में लिखा जाए। अच्छा, दूसरा ये था कि आप जब प्रधान चुने गए तो आपने भ्रष्टाचार को लेकर के भी बड़े अनाउंसमेंट किए, वो क्या है आखिर में? ऐसा जी, भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए कहावत है, कोई डॉक्टर के पास मरीज गया, वो कहने लगा भाई मुझे गुड़ खाने की आदतें हटा दो, वो कहने लगा अगले हफ्ते आइए। वो अगले हफ्ते गया, उन्हें कहा भी गल लिस्ट है, तू गुड़ छड़ दे तो तू ठीक हो जाएगा, तेरी बीमारी है तो ठीक हो जाएगी। आंदा डॉक्टर साहब मैनू हफ्ता पहलों दस देना भी गुड़ छड्या तू बीमार हो ठीक हो जाएगा। आंदा उदों मैं खुद गुड़ खांदा हाँ। इस करके भ्रष्टाचार नूं खत्म करने वास्ते सब तो पहले मैनू अपने आप ते लागू करना पेगा। 2014 तो लैके 2020 तक मैं एडहॉक कमेटी का प्रधान रहा। पहला मैं अपना ऑडिट करवांगा भी 6 सालों में जो भी मेरे को हेरा फेरी हुई है ਜਾਂ मैं लालचवश कुछ भी गुरु घर का मेरे हाल निकलेगा, पहलों मैं वो देंगा। उस तो बाद 2020 तो बाद 2025 का ऑडिट अटरनल ऑडिट करवावांगे, जिहदे वाल जो निकलता आया उन्होंने वो भरना पेगा, ना भरेगा तो वो कोर्ट केस करके वो को पैसे भरवाए जाएंगे। दूजा जी मैं अपने ते गल लागू की, मैं पहले दिन ही बंदे अनाउंसमेंट करता भी ना गुरु घर की गोलक से बिल्कुल मैं बोझ नहीं बनागा, ना गड्डी लाँगा, ना ड्राइवर लाँगा, ना तेल लाँगा। मेरे पुत्रा ने चलो मेरी इमदाद की, उन्हें उस दिन मैनू अपनी गड्डी एक नवीं खरीद के दे दी, मैं अपनी गड्डी वरत्या। दूजे मैंबरों तो मैं किसी का बैन नहीं लाया बई जे कोई लेना चाहता लै, जे कोई तेल लेना चाहता लै, जे कोई खर्चा लेना चाहता लै, पर मैं अपने आप से लागू करना वा। मैं एक पैसा भी गुरु घर की गोलक से बोझ नहीं बनना। दूसरा, कई सामाजिक मुद्दों पे भी कमेटी काम करती है। इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो नशे का मुद्दा है। आसपास के अगर इलाकों में देखें तो बड़े पैमाने पे यूथ जो है, युवा जो है इस ओर भटक रहे हैं, उसको लेके क्या काम करेंगे आप? इस तरह जी ये बहुत ही अहम और बहुत ही मुश्किल डिफ़िकल्ट, दुनिया में इतना डिफ़िकल्ट कोई क्वेश्चन ही नहीं नशा छुड़वाने का। बड़ी बड़ी सरकारें चली, अकाली दल भी कहता रहा नशा छुड़वाएंगे, नहीं छोड़ पाया। अब भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने कहा भी नक्शा छुड़वाएंगे, नहीं छोड़ पाए, नहीं कामयाब हो। ये इतना टेढ़ा और इतना डिफ़िकल्ट है काम है कि इसके लिए तो इसकी काट ढूंढनी पड़ेगी। नशा छुड़वाने के लिए एक जब लोहे को लोहा काटता है ना, तो हमें पहले लोहे के काटने पर जिसको काटना है उसके डबल पावर का लोहा काटने के लिए कोई आरा मशीन, कुछ भी तलवार, कुछ भी है, लोहे को लोहा काटने के लिए जो चीज़ काटनी है उससे डबल पावर की होगी, तभी लोहे को लोहा काट पड़ेगी। इसका कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा, मगर आज तक किसी ने विकल्प तो ढूंढा नहीं। एक खोल दिए, सेंटर खोल दिए भी नशा छिड़वाओ, नशेई जाते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन रहते हैं, करोड़ों रुपए सरकारें खर्च कर रही हैं, जब वो घर आते हैं सोसाइटी अपनी में उसी में जाते हैं तो फिर नशा लेना शुरू कर देते हैं। ये कितना डिफ़िकल्ट सवाल है कि ये मैं सोचता हूँ कि या तो इसको परमात्मा ही इतनी समर्थ बख्शे कि नशा ख़त्म हो जाए, या इसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा। कि सबसे ख़तरनाक आज नशा है स्मैक का, एक दो और हैं ये जो उसको चिट्टा बोलते हैं, वो इतने ख़तरनाक हैं नशे हैं कि जिसमें आदमी एक तो उसका माइंड भी शारीरिक तौर पर कमज़ोर होता है, माइंड भी उसका कमज़ोर होता है, वो किसी काम का रहता ही नहीं। जो स्मैकी हैं और जो चिट्टा लगाते हैं वो सबसे ख़तरनाक है। तो इसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा कि इस नशे को ख़त्म करने के लिए क्या तोड़ बनाया जाए। मैंने कहा है ना, कोई चीज़ काटने के लिए उसका हथियार ढूंढना पड़ता है, भी इस चीज़ को काटना है ख़त्म, तो इसका हथियार कौन सा इस पर लागू होगा। ये आगे एक तोप वाले से टैंक वाला मुकाबला करेगा, तोप के बदले उसके बड़ी तोप यूज़ करनी पड़ेगी, तलवार वाले के मुकाबले बंदूक वाला आगे खड़ा करना पड़ेगा, तभी तलवार वाला हल पाएगा। इसलिए चिट्टा और स्मैक को ख़त्म करने के लिए जो सबसे ख़तरनाक नशे हैं हमारे सारे वर्ल्ड में चले हुए हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, और मैंने तो ये सुना है कि जो चिट्टा और स्मैक पीने लग जाते हैं वो सारी ज़िंदगी छोड़ ही नहीं सकते, ये इतना खतरनाक।
चाहे साल भी छोड़ दें, जब भी किसी सोसाइटी गलत में बैठ के एक बार दोबारा स्मैक और चिट्टा उन्होंने लगा लिया तो फिर वो शुरू हो जाते हैं, हट ही नहीं सकते। ज़मीनें बिक जाती हैं, हज़ारों हमारे नौजवान मर रहे हैं इसमें। तो इसका तो ये बहुत ही समझो कि इतना डिफ़िकल्ट हो सकता है कि परमात्मा भी इसके लिए सोचने पर मजबूर हो कि इसको नशे को कैसे ख़त्म किया जाएगा। इस पे मैं पूरी वर्क कर रहा हूँ, भाई इसका तोड़ क्या निकाला जाए, कैसे नशेड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता अपने उस जीवन में लाया जाए, इसका तोड़ क्या है, उस पर मैं पूरी रीडिंग कर रहा हूँ। ये ना तो हमारे नशा छोड़ो केंद्र इसको छुड़वा सकते हैं, ना इस पर खर्च करने पर छुड़वा सकते हैं, केवल तो केवल उनका दिमाग जो नशा करते हैं उनका माइंड कैसे वाश किया जाए उसकी भरपाई के लिए। जैसे अनाज आदमी की पूर्ति है, अनाज के बिना आदमी रह नहीं सकता, मगर अनाज नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलता, उसके बदले जैसे फल, दूध, दही, लस्सी और चीज़ें हम खा सकते हैं, ब्रेड खा सकते हैं, रोटी नहीं खानी तो ब्रेड विकल्प हो गया। इसलिए उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा, भी क्या विकल्प रहेगा इसका, इस नशे को छुड़वाने के लिए। उस पर मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। हो सकता है कि जल्दी 5-4 महीने शायद लग जाए मुझे इस पर विकल्प ढूंढने के लिए। 5-6 महीने बाद मैं आपको विकल्प भी दुनिया भर के लोगों को बताएंगे कि नशा, पहले खतरनाक जो नशे हैं उनको छुड़वाने के लिए इसका विकल्प क्या रहेगा, उसकी खेती करवा के हम ऐसा कोई काम करें। दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या जो है धर्मांतरण का है। एक चलन नज़र आता है क्रिप्टो क्रिश्चियन का, मतलब कि एक तरीके से उनकी जो लोग धर्मांतरित होते हैं वो धर्मांतरण तो कर लेते हैं, लेकिन जो है वो नज़र अपने मूल धर्म की तरह ही नज़र आते हैं। तो ये जो चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं कि जो धर्मांतरण की गतिविधियां, अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो बड़े पैमाने पे जो है धर्मांतरण टारगेट किया जाए, मिशनरी टारगेट कर रही हैं। उससे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी कैसे निपटेगी? कोई खास रणनीति पे कोई विचार है? हाँ जी, ये देखो आपने बहुत बड़ा एक सवाल मानवता के लिए किया है, धर्म के ऊपर भी किया है कि जो लोग रिलीजियस बदल लेते हैं, सिख धर्म ईसाई धर्म के जाते हैं या दूसरे धर्म हिंदू धर्म चले गए, कोई चले गए, कन्वर्ट हो रहे, सिख हैं ईसाई धर्म धारण कर लिया मगर रहेंगे सिख ही सिख, दिखे हमने भी सिख हैं मगर वो जाते ईसाइयों के में हैं, और जो दूसरे हिंदू धर्म के लोग हैं वो भी जाते हैं मगर सब साबुत सूरत हिंदू ही दिखते हैं वो। उसका भी मैंने वैसे उस पर वर्कआउट किया हुआ है कि क्या इसके लिए किया जाए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सिखों की सबसे बड़ी संस्था है, उसने आज तक धर्म का प्रचार करने के लिए, अपनी माँ बोली प्रचार करने के लिए, जैसे गुरुमुखी बोली है हमारी, आज तक प्रचार ही नहीं हुआ। भाई गुरुमुखी पंजाबी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज तक हम बता ही नहीं पाए। इसके लिए हमें पनीरी तैयार करनी पड़ेगी, नर्सरी से पनीर तैयार करनी पड़ेगी कि गुरुमुखी भाषा जो है, ये केस क्यों रखे जाते हैं, ये दाढ़ी क्यों रखी जाती है, ये कड़ा, ये कृपाण क्यों पहनी जाती है, सिख धर्म के क्या फीचर हैं और ईसाई धर्म के क्या, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से कंपेयर करना, सिख धर्म और ईसाई धर्म से कंपेयर करना, सिख धर्म और हिंदू धर्म से कंपेयर करना। मगर परमात्मा के द्वारा बनाए हुए जो धर्म है उनको कोई तोड़ नहीं सकता। वो धर्म तो धर्म रहेंगे, जैसे हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, मुसलमान धर्म, ये चारों धर्म तो रहेंगे और धर्म सभी ही सम्मान योग्य। कोई भी धर्म किसी को तोड़ता नहीं, धर्म हमेशा किसी को जोड़ता है। मगर परेशानी तब आती है कि कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा अपनी तरफ कन्वर्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ सबसे इनमें पावरफुल जो धर्म कन्वर्ट कर रहा है अपनी तरफ वो है ईसाई धर्म। हमने ईसाई धर्म की जो उनका तरीका है, तौर तरीका है, वो कैसे तोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं वो ऐसे नहीं जैसे हम धर्म प्रचार करते हैं, बड़े बड़े फंक्शन कर दिए, लाखों रुपए के लंगर कर दिए, हजारों कर दिए, अमृत खा लिया, अमृत खाने के बाद उसकी कुछ पैरवी नहीं की, भाई जो अमृतधारी है वो क्या सही अमृतधारी की घूमने का निभा रहा है कि नहीं निभा रहा, उसके ऊपर गौर ही नहीं कभी किया। वो ईसाई धर्म जो ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, वो हर घर में जाके वो बताते हैं कि ईसाई धर्म के आपको ये फायदे होंगे, शिक्षा हम फ्री देंगे, खाना फ्री देंगे, ड्रेस हम फ्री देंगे, आप हमारे धर्म में आओ और ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। मगर हम बड़े बड़े दल से जुलूस करके धर्म के प्रचार कर रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं।
वो ही उनका सबसे बढ़िया तरीका है। लालच देते हैं वो लालच भी देते हैं और तरीका भी उनका पर्सनल आदमी का है। औरतें के पास बैठती हैं हर घर में जाके, और आदमी के पास बैठते हैं, आदमी को समझाते हैं, नौजवानों को समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, और जो लड़कियां हैं नौजवान, और लड़कियों को अपनी नौजवानों को समझाती हैं। वो अलग अलग हर उन्होंने विंग बना रखे हैं। जब तक हम ऐसे विंग नहीं बनाएंगे तब तक हम अपने धर्म की वो प्रौढ़ता दिखा ही नहीं सकते, उनके मेरिट नहीं दिखा सकते। मगर मैं आपको एक बात, चाहे कोई भी धर्म हो, मैं कहता हूँ हमें सारे स्वीकारी हैं, सारे हमारे समान लोग हैं, पर जो अकाल पुरुष ने, परमात्मा ने जो रूप दिया है, गुरु गोविंद सिंह ने इसीलिए तो खालसा धर्म था, और उन्होंने एक वचन भी कहा था, खालसा मेरा रूप है खास, खालसे मैनू करो निवास। उन्होंने कहा कि खालसा ही असली रूप है जो अकाल पुरुष से आता है, बाकी सारे धर्म है वो यहाँ पर आकर बनतर बनाते हैं। चाहे हिंदू धर्म के लोग हैं, यदि 2 बच्चे पैदा हो गए तो दोनों बच्चों को आप रखो तो वो इसी दो रूप में आएंगे जो परमात्मा ने बनाया। अपने ऋषि मुनि जो भी हैं उनका स्वरूप यही था, और ये खालसा रूप है, ये खालसा का वो रूप है जो अकाल पुरुष ने ऊपर से बना के भेजा। और कई आपने देखा होगा, कई औरतें हैं उनको मूछ दाढ़ी आ जाती है, वो परमात्मा की देन है ना, वैसे तो आ ही नहीं सकती क्योंकि उनके वो फीचर ही अलग हैं। और कई ऐसे हैं, मैं आपको आदमी दिखाता हूँ जिन पर मूछ दाढ़ी आती ही, बिल्कुल आपने देखा होगा। कई ऐसे हैं कि जो ये अपना होते हैं खुसरे वगैरह, उनका अलग अपने फीचर है। ये जो परमात्मा बना के भेजता है वो तो असली रूप है जो गुरु गोविंद सिंह ने ये खालसा रूप का धारण किया। बाकी के धर्म तो बनाए जाते हैं अपनी धर्म की पहचान बनाने के लिए। ये धर्म की पहचान है भाई, मुसलमान कैसे अपनी वेशभूषा बनाएंगे, बाल कैसे रखेंगे, शेप कैसे बनाएंगे, दाढ़ी कितनी रखेंगे, मूछें कितनी रखेंगे। हिंदू धर्म ने अपने फीचर बना लिए, बेदाढ़ी, मूछ, सिर के बाल और कैसे चाहिए, हमें निशानी किया। सिख धर्म ने तो केवल निशानी तो गुरु गोविंद सिंह ने दी, एक कंघा सिर में बालों को लगाने के लिए, और केस होने चाहिए, केस तो परमात्मा ने देने, उसकी सफाई के लिए कंघा कहा। हाथ में कड़ा चाहा रक्षा करने के लिए, हाथ में शस्त्र उन्होंने कहा, और कशहरा जो अपना है नीचे हम पैंट के या पजामे के वो कशहरा दी। ये 5 चीज़ें उन्होंने कहा कि ये जरूरी हैं, ये उसकी सुरक्षा के लिए। जहाँ हथियार सुरक्षा करता है, कड़ा भी इसके लिए बहुत बड़ी उसकी है, और कंघा भी केस को साफ करता है, और कशहरा जो है वो भी आदमी का पर्दा रहता है। इसलिए ये 4 चीज़ें, उसको 5 चीज़ें रखनी जरूरी हैं, तब वो खालसा जो है अमृतचारी सही धर्म का रहेगा। हिंदू धर्म में अपने हैं, जैसे वो जनेऊ पहनना और दूसरा करना, अपनी शेप, सिर के बाल कटाने, मूछें कटानी, दाढ़ी ना रखनी, ये हिंदू धर्म की निशानी है। ईसाई धर्म की अपनी अलग से निशानी है, तो पहनना, और कोई बाल लंबे करता है, कोई छोटे करता है, अलग अलग निशानियाँ। मुसलमान का अपना है, वो दाढ़ी थोड़ी सी रखते हैं, कुछ मूछें रखते हैं, ये अलग अलग हमारे पहचान है धर्म। मगर जो खालसा का रूप है, जो खालसा पंथ है, जो सिख लोग हैं, वो उसी रूप में ही रहेंगे जो परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, जो परमात्मा ने दिया है उसी में रहना। ये पहचान है। तो आखिरी सवाल कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के जत्थेदार होने के नाते आम संगत से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यदि सिख संगत की बात करें, उनके लिए और संदेश है, आम जनता सारी के लिए और संदेश है। पहले मैं आम जनता को, दुनिया भर के जनता को ये संदेश दूंगा कि सभी परमात्मा के भेजे हुए स्वरूप हैं। मानवता के तौर पर आप जिस भी धर्म में हो, किसी भी धर्म को में हो, आप उस धर्म को अडॉप्ट करो, और उसकी जो बनता है उस धर्म का विरोध ना करके उस धर्म के रहकर अपने धर्म को आगे बढ़ाओ, कोई भी धर्म से। और सिख धर्म के लिए जो हमारे गुरु गोविंद सिंह ने कहा है हम ककारों का, वो जहाँ बाना, मतलब हमारा बाना जैसे फौजियों का अलग ड्रेस होती है, सिपाहियों की अलग ड्रेस होती है, वो हमारा जो गुरु गोविंद सिंह ने हमें बाना का है वो हमें बाना धारण करना चाहिए। और बाने के साथ वाणी, गुरु वाणी, जो हमारे गुरु के मुख से उच्चारी हुई वाणी है, उसका भी अध्ययन करना चाहिए। और तीसरा है सिख धर्म के लिए ये शस्त्र, हर एक जो अमृतधारी हो उसके हाथ में 3 फुट की ये शस्त्र होना चाहिए। सिख धर्म के लिए तो मेरा विशेष तौर पे ये संदेश है कि बाना और वाणी और शस्त्र के धारणी हो।
तभी गुरु गोविंद सिंह महाराज और हमारे गुरु और अकाल पुरख को बहुत बहुत धन्यवाद जथेदार जगदीश सिंह जिंदा जी। तो आपने जैसा कि पूरी बात को सुना कि जथेदार जगजीत सिंह जिंदा ने पहली बार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान के तौर पर उनकी चुने गए हैं और उन्होंने समाज के लिए और संगत के लिए बहुत सी बातें कही हैं जो आने वाले समय में गुरुद्वारा कमेटी क्या कुछ करने जा रही है आम संगत के लिए, सिख संगत के लिए, उन सभी बातों को विस्तार से उन्होंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी जानकारियाँ मिलेंगी जिनका आप भविष्य में फ़ायदा उठा सकेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।